This is journal entries, sum number 5, page number 85. Journalize the following transactions in the books of Kunal Stores. In the books of Kunal Stores, journal entries, date, particulars, LF, debit amount in rupees, credit amount in rupees. This space is for working notes. I will write working note number 1. Working notes मतलब रफ वर्क करने के लिए. Purchase goods of rupees 90,000. First transaction, very important, mark कर लेना. 90,000 at 10% trade discount. Less 10% trade discount. 10% trade discount will be 9,000. 90 minus 9 is 81,000. Hope you understand. Trade discount is not written in the books of accounts. तो चौकड़ी चौकड़ी परचेज है तो P, सेल है तो S. परचेज है तो P, सेल है तो S. ओके, यहां तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं. ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट है, पहली बार सॉल्व कर रहे हैं ऐसा ट्रांजैक्शन. एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश and 1/3 amount received by check. Once again, it is given trade discount, it is given cash discount. तो तुम लोग मुझे बोलेंगे सर you subtracted trade discount first, then subtract cash discount, then read the transaction. No, ऐसा नहीं करना है. First subtract the trade discount, don't subtract the cash discount. तुम लोग बोलेंगे सर why? Because read whether the entire transaction is a cash transaction. If the entire transaction is a cash transaction, मतलब तुरंत पेमेंट मिल रहा है या तुरंत पेमेंट दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट माइनस होएगा, नहीं तो कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा. कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉट अदर ट्रांजैक्शंस. तो इन दिस क्वेश्चन 1/3 amount is received by check. 1/3 amount is received by check. Once again, purchase goods worth rupees 90,000 at 10% trade discount, 10% cash discount from Rakesh. Rakesh से हमने purchase किया and 1/3 amount is paid by check. Received word गलत वहां पे लिखा हुआ है. Paid by check. When you purchase, you pay the amount. तो 1/3 amount is paid by check. That means 1/3. अभी देखो आप बहुत सारा मैथ्स के स्टूडेंट्स को समझना ही चाहिए, बट जो एसपी वाले हैं उनको भी समझना चाहिए. 1/3 amount is received by check. Sorry, is paid by check. 1/3 of 81,000. 1/3 of 81,000 is 81,000 into 1/3. 3 2s are 6. 3 7s are 21. 27,000 is paid by check. बाकी का पेमेंट 1/3 ना, 3 में से एक हिस्सा चेक से पे किया, तो 2/3 is not paid. So 81,000 minus 27,000 will be 54,000 is not paid. Not paid. अरे समझा कर. This is paid, this is not paid. This is paid, this is not paid. This is paid, this is not paid. बराबर. If you pay on the spot, you will get a cash discount. But if you don't pay, you won't get a cash discount. आराम से. If you pay on the spot, either you pay by cash or by check. If you pay, you get a cash discount. If you don't pay, you don't get a cash discount. So here 10% cash discount is 2,700. Then you will get 24,300. Okay. Here there is no cash discount. Here हमें कुछ भी cash discount नहीं मिलेगा, and this amount will remain the same because ये अमाउंट हमें देना बाकी है, लेकिन वो डिस्काउंट में नहीं मिलेगा बिकॉज हमने तुरंत पेमेंट नहीं किया है. बराबर है. चौकड़ी चौकड़ी P. P is divided in two parts. That is, this is also P. This is also P. P P. This is D C. चेक से पे किया, चेक से पे किया तो बैंक आ जाएगा.
परचेज डिस्काउंट बैंक, ओके ना, एंड दिस इज नॉट पेड, दिस इज ऑल्सो पी, तो ये नहीं पे किया है, नहीं पे किया है तो उधार है, नहीं पे किया है तो उधार है, तो नाम आएगा। अरे बराबर है, नहीं पे किया है तो उधार है तो नाम आएगा। देखो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जर्नल एंट्री पे आते हैं। पारो दही से चाट बनाती है, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, परचेज account is debit. How much? 81,000. If purchase is debit, so payment is credit. You are purchasing, that means you are paying, that is credit. But कैसे पे किया? कैश पे किया क्या? नहीं, बैंक से पे किया। कितना बैंक से पे किया? 24,300। कैश और बैंक की गर्लफ्रेंड कौन है? डिस्काउंट। कैश और बैंक की गर्लफ्रेंड कौन है? डिस्काउंट। डिस्काउंट बोलेगी बैंक को क्रेडिट होएगा तो मैं भी क्रेडिट होएगी, हाँ तो ठीक है, तू भी क्रेडिट हो जा। डिस्काउंट अकाउंट कितना? 2,700। अरे बराबर है, क्लियर है। सो दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। बचा क्या? नाम। तो नाम क्या है? किससे परचेज किया? राकेश से, तो राकेश अकाउंट, दैट इज हाउ मच? 54,000। नाम में 54। अब चेक करो टोटल टैली होता है क्या? 54 प्लस 27 इज 81। डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। बीइंग करके तुम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर देना। बीइंग परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश, पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा। परचेज फ्रॉम राकेश एंड 1/3 पेमेंट बाय चेक, पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? नरेशन विल एक्सप्लेन द एंट्री, बराबर है। वर्किंग नोट कॉपी कर लेना सो दैट जगह क्रिएट होगी तो मैं रब कर दूंगा। आगे चलते हैं। सेकंड, ओपन द करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। एसबीआई में पैसा डिपॉजिट किया, पैसा आया के गया, पैसा गया, पैसा गया, तो कैश गोज आउट, कैश इज क्रेडिट। कैश अकाउंट कहां गया? एसबीआई में गया। अरे बराबर, तारीख is 5, amount is 6 time, 6 time। अरे बराबर, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8, कैश परचेजेस 85,000, कैश परचेजेस 85,000, कैश परचेजेस 85,000, कैश परचेजेस, सब परचेज, पारो दही से चाट बनाती, परचेज इज डेबिट, परचेज इज डेबिट, so purchase account debit, डेबिट कितना? 85,000, ये डेबिट तो कैश क्रेडिट 85,000। hope this is clear। adjustment number is 10। next transaction, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार। गुड्स सोल्ड, सिंपल, सोल्ड तो सेल्स इज क्रेडिट, सेल्स इज क्रेडिट, सेल्स इज क्रेडिट। एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? तुषार को भेजा, तुषार डेबिट। अरे बराबर, लेकिन डिस्काउंट दिया हुआ है, देखो ना क्या बोला है? 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2,000, so I'll get 18,000। ट्रेड डिस्काउंट है ना, चौकड़ी चौकड़ी, सेल्स है तो एस, तो मतलब एसडीसी नहीं होने वाला है, एस ही होने वाला है, तो सेल का एंट्री आएगा। तो सेल्स क्रेडिट तो तुषार डेबिट, तुषार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज 18,000, 18,000 being goods sold on credit to Tushar। next is number 12, paid salary 4,000, paid cash credit, paid cash credit, paid cash credit, paid cash credit, received cash debit, received cash debit, received cash debit, paid cash credit, salary पे किया, तो salary account is debit to cash account। how much? 4,000, 4,000। अरे बराबर है, तो ये सारा रब कर देता हूँ वर्किंग, ये पहले कॉपी कर लो।
ओके, फिर आगे जाते हैं वहां पे. The next transaction is transaction number 16. Tushar returned goods of rupees 250. Now see here, we had sold goods to Tushar. Okay. Now when Tushar is returning the goods, now the logic is, when you are selling the goods, when there is sales and the customer returns the goods, it is called as sales returns. When you are purchasing the goods and when you are purchasing the goods and you are returning the goods to the seller, then it is purchase returns. Hope you understand. Sales return, purchase return. That means what we understood here is that sales का reciprocal opposite is sales return and purchase का opposite is purchase return. Sales का opposite is sales return, purchase का opposite is purchase return. So sales is credit, so sales return is debit, purchase is debit, तो purchase return is credit. लिख के ले लो फटाफट, लिख के ले लो. पारो दही से चाट बनाती है. परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट. सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट. तो तुषार ने गुड्स रिटर्न किया तो इट इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने रिटर्न किया? तुषार अकाउंट. How much? It is 250. 250. Date is 16. Okay. Date is 16. Clear? Next entry is 17. Goods taken by Kunal for his private use 2000. Goods taken, once again, goods taken by Kunal for his private use. Private use. Ton. Personal use. Ton. Household use. Ton. Drawings. Chandni Chowk, Dehradun. Personal use is drawing and drawing is always debit. Drawing account debit. कितने के गुड्स लिया? Goods taken by 2000. ओके, क्या लिया? Goods withdrawn for personal use 2000. अरे बराबर, अरे क्लियर है, यहां तक क्लियर है. ओके, मैं ये रब करता हूं, ये कॉपी करता हूं. परचेज, सॉरी, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट. सेल्स रिटर्न को एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न को एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड. लिख के ले लो. ओके, लिख लो, मैं रब कर रहा हूं. नंबर 20, परचेज लैपटॉप वर्थ रुपीज 40,000 from Joshi Electronics at 18% GST and paid by check. 40,000 का लैपटॉप खरीदा और जीएसटी भरना पड़ेगा 18%. 18% में 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है. अरे बराबर है आधा आधा. 9% of 40,000 will be 3,600. 9% will be 3,600. तो लैपटॉप कितने का पड़ेगा? 40 का पड़ेगा. मतलब पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी? 40 प्लस टैक्सेस. अरे बराबर है. मैंने कहा था ये जो टैक्स है ना, ये असेट को चिपक के चलते हैं. अगर असेट डेबिट होएगा तो ये टैक्स भी डेबिट होएंगे, असेट क्रेडिट होएगा तो टैक्स भी क्रेडिट होएंगे. बराबर है. सो आई विल राइट परचेस किया ना लैपटॉप 20. सो लैपटॉप आया तो लैपटॉप्स अकाउंट डेबिट. सीजीएसटी परचेस किया तो इनपुट, सोल्व किया तो आउटपुट. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. टू चेक से पे किया
बैंक अकाउंट 40,000 का लैपटॉप, 3,600 CGST, 3,600 SGST, 47,200 में लैपटॉप पड़ेगा। अरे बराबर है, क्लियर है, एंट्री क्लियर, समझ में आ गई, क्लियर। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर इज 22 में पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, बट चेक से पे किया तो बैंक क्रेडिट। क्या पे किया? रेंट पे किया तो रेंट। इजी है ये सब, अभी इजी लगना चाहिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक से पे किया टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? पेड कितना है रेंट बाय चेक? 15,000। ओके, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 25 क्या बोला है? परचेज मोटर कार वर्थ रुपीज 20,000। ओके, जीएसटी 18%, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 9% आएगा इसका 1,800। मोटर कार खरीदा, सेम लैपटॉप वाला एंट्री जैसा। मोटर कार अकाउंट डेबिट, असेट के साथ टैक्सेस, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे किया? बैंक से किया टू बैंक अकाउंट। 20,000 का मोटर कार, 1,800 रुपया सीजीएसटी, 1,800 रुपया एसजीएसटी, 23,600। ओके ओके ओके, इज इट क्लियर? क्लियर, राइट दिस वर्किंग। लिखा? आगे जाते हैं। नंबर 26, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। किया था कल के लेक्चर में, किया था लास्ट लेक्चर में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में बांटा मतलब एडवर्टीजमेंट किया, फ्री सैंपल में बांटा मतलब एडवर्टीजमेंट किया, फ्री सैंपल में बांटा मतलब एडवर्टीजमेंट किया। एडवर्टीजमेंट किया तो एडवर्टीजमेंट नुकसान है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बांटा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, कितना? इट इज 4,000। इट इज व्हाट? 4,000। ओके ओके ओके, नंबर इज 28। परचेज गुड्स from Amit 60,000 on credit. Purchase goods from Amit 60,000 on credit. Purchase goods from Amit 60,000. Purchase मतलब डेबिट, पारो दही से चाट बनाती है। Purchase means डेबिट, purchase means डेबिट, purchase means डेबिट। किससे खरीदा? अमित से, तो अमित का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। बराबर है, क्लियर है क्या? परचेस किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है, पारो दही से चाट बनाती है। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया? अमित, तो टू अमित सर। अरे बराबर है, हाउ मच? 60,000। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट नंबर इज 30। पेड बाय ECS to Amit 58,500, who allowed us a discount of 1,500. Paid by ECS. ECS means what? ECS means electronic clearing system. लिखो, ECS means electronic clearing system। मतलब तुमने पेमेंट किया, तुमने क्या किया? बैंक से, एप्लीकेशन से पेमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया। अरे समझ में आ रहा है क्या? इंटरनेट से पेमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट किया। मतलब पैसा कैश में दिया कि बैंक से दिया? बैंक से दिया। कैश में किया कि बैंक से किया? बैंक से किया। कैश में किया कि बैंक से किया? बैंक से किया। पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट। लेकिन इधर बैंक है तो बैंक क्रेडिट, ECS है इसके लिए बैंक क्रेडिट। अरे बराबर है, कितना पे किया? 58,500। अरे बराबर है, क्लियर है। बैंक और कैश की गर्लफ्रेंड जिसका नाम है डिस्काउंट बोलेगी अगर बैंक को क्रेडिट होएगा तो मैं भी क्रेडिट होएगी। डिस्काउंट अकाउंट, कितना डिस्काउंट अलाउ किया उसने? 1,500। तो
तो डेबिट क्या होगा, कौन है भाई, अमित है ना, तो अमित अकाउंट कितना डेबिट होना चाहिए, टोटल 60,000, अरे बराबर, ओके। नेक्स्ट इज 30, वंस अगेन 30 बराबर ना। सोल्ड गुड्स 5,000 at a loss of 1,000, sold goods sales credit कितने की गुड्स बेचा, 5,000, अरे बराबर है, पैसा कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 4,000, और लॉस कितना हुआ 1,000, लॉस कितना हुआ 1,000, या इधर लिख सकते हैं हम लोग अदर एक्सपेंसेस या लॉस ऑफ गुड्स लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि लॉस लिखेगा तो भी चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट 4,000, 4,000 रुपया आए, 5,000 के गुड्स के, तो 1,000 का क्या हो गया लॉस, डेबिट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 31, सोल्ड गुड्स सेल्स क्रेडिट, बारह दही से 4 बनाती, सेल्स क्रेडिट कितना सेल्स 20,000, तो डेबिट क्या होएगा, नाम नहीं दिया है तो डेबिट होएगा कैश अकाउंट डेबिट 20,000, अरे बराबर है, इतना जगह नहीं था यहाँ पे मेरे पास वर्किंग नोट करने का भी। सो विद दिस वी स्टॉप फॉर टुडे, ओके। सो दीस आर द जर्नल एंट्रीज। मेन एंट्रीज हार्ड जो है वो एक एंट्री हार्ड थी, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री हार्ड थी, इनपुट CGST ये वाली हार्ड थी, एंड डिस्काउंट वाली अमित वाली हार्ड थी, एडवर्टीजमेंट वाली हार्ड थी, एंड लास्ट में लॉस वाली हार्ड थी। ये सारी एंट्रीज को मार्क करके रखो पेंसिल से, सो दैट इसका प्रैक्टिस तुम लोग कर सको, ओके। बाय बाय।